Hello students, today we are starting the topic. Name of the topic is protein. So in our syllabus, the normal information, introduction about protein, then classification of protein. So first info, then means introduction, then classification, and then structure. Okay, so only these three topics are covered for protein. See, if we take for protein, if we take the structure, then R for alkyl group, then CH, then COOH, and then NH2. So again R, CH, NH2 and COOH. Here this one is the basic unit of protein and its name is amino acid. Its name is amino acid. See, here we are taking the introduction about amino acid. See, as we go from left hand side to right hand side, first we are writing about starch. Here I am writing maltose, and the third one is glucose. So glucose is a monosaccharide, maltose is a disaccharide and starch is polysaccharide. ओके चलो वर्ड तो सुना ही होगा आपने. ग्लूकोज की अगर हमने लॉन्ग चेन ली है, इफ वी टेक द लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज एंड इफ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब दो दो यूनिट्स कंबाइन रखते हैं तो फिर वो बोलता है माल्टोज. और फिर उसका अगर उसको हम अब हाफ करेंगे मिडल में से, सो इसका नाम है सिंगल यूनिट जो बनता है, सिंगल यूनिट का नाम है ग्लूकोज. Okay, so it means the basic unit of starch is a glucose. Okay, so starch is a polysaccharide, maltose is a part of starch, and the glucose is the basic unit. Similarly, protein is the long chain. Protein is a long chain, and if it is hydrolyzed, मतलब starch का अगर हमने hydrolysis किया तो maltose मिलेगा, और फिर उसका hydrolysis करते तो हमें बेसिक यूनिट मिलता है ग्लूकोज. सिमिलरली इफ प्रोटीन इज हाइड्रोलाइज्ड देन वी आर गेटिंग पेप्टाइड्स, और फिर अगर उसका हमने हाइड्रोलिसिस किया देन वी आर गेटिंग एमिनो एसिड. तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एमिनो एसिड है ना, ये मोस्ट बेसिक यूनिट हुआ किसका, प्रोटीन का. ओके, तो ये प्रोटीन का मोस्ट बेसिक यूनिट हुआ. तो प्रोटीन, पेप्टाइड्स. अब देखो यहां पे मैंने बताया था माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड. अगर स्टार्च को हमने ब्रेक किया और 3 ग्लूकोज की चेन बनाई तो फिर उसको हम बोलेंगे ट्राइसैकेराइड. 4 हुए तो टेट्रासैकेराइड. सिमिलरली अगर 2 एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं तो फिर हमें मिलता है डाइपेप्टाइड. 3 कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है ट्राइपेप्टाइड. 4 कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है टेट्रापेप्टाइड. सो अगेन प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पेप्टाइड मिलता है, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एमिनो एसिड. एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एमिनो एसिड इज नॉट पॉसिबल सिमिलर एज ग्लूकोज. तो जैसे स्टार्च टू माल्टोज टू ग्लूकोज आए, सिमिलरली यहाँ पे प्रोटीन टू पेप्टाइड टू एमिनो एसिड आए. तो ये जो एमिनो एसिड है, अब चलो अब नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं आर. अब ये आर क्या है, आर इज अल्काइल ग्रुप, मतलब ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है. ओके चलो, तो फिर ये जो आर है इट्स अल्काइल ग्रुप, और एमिनो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है. सिमिलरली COOH ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट है. अब यहाँ पे ये जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड
this amino acid has a dipolar nature. So in this dipolar nature, generally this hydrogen atom is transferred from one to here. So we are getting RCH, NH3 plus and COO minus. Okay, so only this hydrogen atom is transferred from COOH to NH3. So this basic unit is known as dipolar ion. Okay, and it has amphoteric nature. Amphoteric means acidic nature, means it will act as an acid. Basic nature means it will act as a base. Amphoteric nature means it will act as a acid and base both. So means when amino acid reacts with an acid, at that time this acid has main ion H plus, so at that time this COO minus will react with H plus. And similarly, if this amino acid reacts with a base, so base most basic ion of the base is OH minus, so OH minus will react with this NH3 plus. Okay, so that we can say that here amino acid has amphoteric nature. तो एम्फोटेरिक नेचर का एग्जाम्पल चलो सबको समझ में आ गया होगा कि एम्फोटेरिक क्या है. सो अगेन एमिनो एसिड, तो उसका ये मोस्ट बेसिक यूनिट RCH NH2COOH और हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा. ओके, और ये डाइपोलर नेचर इसका होगा. अब ये जो एमिनो एसिड है उसमें मोस्ट प्राइमरी एमिनो एसिड कौन सा है, तो इसका नाम है ग्लाइसिन. इसका नाम है ग्लाइसिन. ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है NH2. हियर R विल बी हाइड्रोजन, CH2 and COOH. And this is only the one amino acid which is optically inactive, because here there is no chiral carbon atom, because it contains hydrogen, 2 hydrogen atoms, so there is no chiral carbon. Chiral carbon means पता है ना कि valency of 4 carbon atoms are satisfied by 4 different functional groups. Okay, so it is known as chiral carbon. तो यहाँ पे chiral carbon है ही नहीं. That means glycine is optically inactive. ओके, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स किससे होंगे, तो देखो एक कंपाउंड एलेनाइन, और एलेनाइन का स्ट्रक्चर है NH2 CH3. कुछ भी लिखो, CH3 ऊपर NH2 नीचे. तो देखो यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है, तो समझ में आ गया होगा. तो सिर्फ ग्लाइसिन ही ऐसा एमिनो एसिड है जिसपे कायरल कार्बन है ही नहीं, और यहाँ पे कायरल कार्बन है. अब एमिनो एसिड के बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप. तो एक है एसिडिक एमिनो एसिड. एसिडिक एमिनो एसिड में क्या लिखेंगे हम, बेसिक एंड न्यूट्रल. एसिडिक एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप और COO, वैसे तो दोनों ग्रुप्स का नंबर सेम होना चाहिए. एसिडिक एमिनो एसिड में क्या होंगे, COOH ज़्यादा होंगे NH2 से. बेसिक में क्या होगा, चलो अब पता चल गया होगा, NH2 ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक प्रॉपर्टी, सो इट विल बी मोर देन द कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड इफ बोथ द नंबर्स आर सेम लाइक ग्लाइसिन एलेनाइन, then it is a neutral amino acid. So number of amino and number of carboxylic acid groups are same, then neutral. NH2 more, then basic. COOH more, then it is an acidic. चलो, तो ये हुआ ग्लाइसिन और एलेनाइन. ओके, चलो कंटिन्यू. अब हम बेसिक बात करें यहाँ पे, तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तो ये हुआ बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज. अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट. Some amino acids are produced in our body.
So these amino acids are not required for our body because already these are prepared in our body. That means these are non-essential. And second number, some amino acids are not formed in our body. So these are taken from the food. So these are the essential amino acid. चलो नॉन एसेंशियल के दो एग्जाम्पल तो हो गए, ग्लाइसिन, एलेनाइन। एसेंशियल का लिस्ट हमें लर्न करना है, और वो लर्न करने के लिए देख लो ध्यान से, मैं एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ और फिर हर एक नाम हम वन बाय वन हम फिर रीड करेंगे। वैल्यू, आल्यू, आज, लाई, थी, मी, ही, फिट्री। वैल्यू, आल्यू, आज, लाई, थी, मी, ही, फिट्री। थोड़ा टिपिकल लगेगा, ओके? हर रोज प्रैक्टिस करो, लर्न हो जाएगा। वैल्यू, आल्यू, आज, लाई, थी, मी, ही, फिट्री। वैल्यू, आल्यू, आज, लाई, थी, मी, ही, फिट्री। वैल्यू, आल्यू, आज, लाई, थी, मी, ही, फिट्री। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इज वैलिन, फर्स्ट इज वैलिन, सेकंड इज ल्यूसिन, again first is a valine, second is a leucine. So valine, leucine, आल्यू मीन्स आइसोल्यूसिन, मैंने फर्स्ट लेटर ही लिया है हर एक एमिनो एसिड का। सो वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन। वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन। वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन। चलो रिवर्स, लाइसिन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वैलिन। लाइसिन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड देन वैलिन। ओके, तो चलो ये एमिनो एसिड्स हुए फर्स्ट पार्ट। चलो सेकेंड पार्ट, इट इज थ्रियोनिन, मिथियोनिन, हिस्टिडिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, हिस्टिडिन, फिनाइल एलेनाइन एंड ट्रिप्टोफान। थ्रियोनिन, मिथियोनिन, हिस्टिडिन, फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलेनाइन, ये एलेनाइन है उसके आगे फिनाइल वर्ड लिख लिया। हिस्टिडिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड देन वैलिन। ट्रिप्टोफान, फिनाइल एलेनाइन, हिस्टिडिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड देन वैलिन। चलो पहले से, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, हिस्टिडिन, फिनाइल एलेनाइन एंड देन ट्रिप्टोफान। सो दीज आर द एसेंशियल एमिनो एसिड। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, चलो वो देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, चलो एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड? तो फिर आपको 3 नॉन एसेंशियल देंगे और एक एसेंशियल देंगे। इजी। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड? तो 3 एसेंशियल देंगे जो आपने लर्न कर दिए हैं, उसके अलावा जो भी होगा वो हमारा आंसर। और क्वेश्चन, सपोज आपको नीचे 1 2 3 4 नंबर दे दिए हैं और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एमिनो एसिड, और नीचे नंबर भी देंगे, ओनली 1 3, ओनली 2 3, ओनली 1 4, ओनली 4। ओके, तो लिस्ट तो आपको सिर्फ एसेंशियल ही लर्न करना है। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज आपको 2 मार्कर क्वेश्चन पूछे कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स इनटू एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो फिर
असेंशियल तो चलो उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो उसके अलावा जो भी होंगे वो नॉन असेंशियल होंगे, सिंपल। अगर आपको नॉन असेंशियल पूछेंगे फिर भी समझ में तो आ ही जाएगा, चलो कौन कौन सा है। और एक क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि राइट टू एग्जांपल्स ऑफ असेंशियल एंड नॉन असेंशियल एमिनो एसिड्स, तो चलो असेंशियल तो आते ही है, नॉन असेंशियल ग्लाइसिन एलानाइन हो गए, क्योंकि लिस्ट में नहीं है, देख लो। ओके तो मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे एमिनो एसिड के बेस पे असेंशियल नॉन एसेंशियल, तो फिर वो आपको आएगा ही 110%। ओके तो चलो अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में से। Proteins are the most abundant biomolecules of the living system. Chief sources of protein are milk, cheese, pulses, peanuts, fish, meat, etc. Okay, next. They occur in the every part of body and form the fundamental basis of structure and the functions of life. They are also required for the growth and maintenance of body, and the word protein is derived from the Greek word proteos, and which means the primary or of the prime importance. All the proteins are polymers of alpha amino acids. ओके तो देखो यहाँ पे अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया है। अल्फा कैसे हुआ? COO is the most basic unit and the functional group containing कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। ओके तो ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। ओके कंटिन्यू। सो यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा डेल्टा, तो उस हिसाब से कॉमन नोमेनक्लेचर दिया है। कंटिन्यू। So amino acids contain first is NH2, second is COOH functional groups. Depending upon the relative position of the amino acid with the respect to the carboxyl group, तो इसके लिए उनका नाम दिया है amino acid। amino group भी है और acid group भी है। चलो all the alpha amino acids have the trivial names, वो आगे आएगा, which usually reflect in the property of the compound in source। चलो glycine अभी हमने पढ़ा है, it is so named since it has a sweet taste. Greek means glycos, glycos means sweet. Tyrosine, it is named for cheese और cheese का Greek name है tyros। Amino acids are generally represented by the 3 letters, तो चलो वो टेक्स्ट बुक में दिया है लेकिन वो टेबल कैंसल्ड है। Now we are starting the classification of amino acid. See, amino acids are the classified in acidic, basic and the neutral depending upon the relative number of the amino and the carboxyl group in their molecule. Equal number of amino and the carboxyl groups makes it neutral. More number of amino than basic and more number of carboxyl group then it is an acidic. The amino acids which can be synthesized in our body, these are known as non-essential. In other hand, which cannot be synthesized in our body, these are essential amino acids. ओके तो वो भी टेबल दिया है यहाँ पे, और फिर जो कैसे लर्न करना है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया कि ये जो ज्विटर आयन है चैप्टर 13 में हमने कर दिया है कि जिसमें डाइपोलर आयन होता है उसका नाम है ज्विटर आयन। तो यहाँ पे ये ज्विटर आयन है जिसमें वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, और दोनों एज एसिड एज एन एसिड और एज अ बेस दोनों वो एक्ट करेगा। सो एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, these are the water soluble high melting solids and behave like the salt rather than the simple amines or carboxylic acids, and this behavior is due to the presence of both acidic and the basic groups in the same molecule. Okay, so in aqueous solution the carboxylic group can lose a proton and the amino group can accept a proton, so giving rise to the dipolar ion
is known as the sweeter ion. चलो sweeter ion याद रखो. And this is the neutral because it contains both the ions, both the charges. So in sweeter ionic form, amino acids show the amphoteric behavior as they react with acids and base. Okay, मैंने समझा दिया है. चलो, except glycine, all the naturally occurring alpha amino acids are optically active. Since alpha carbon atom is asymmetric, these exist in D and L. और D और L में हम लिखेंगे क्या? Based on NH2 group. If NH2 group is right hand side, देख लो एक बार ध्यान से, मैं जो समझा रहा हूँ वो, अगर हमने राइट हैंड साइड लिखा है NH2 ग्रुप का, मतलब यहाँ पे H और यहाँ पे NH2, यहाँ पे R और COOH, हो कैसे आएगा? तो ये है D. कैसे डिसाइड हुआ? बेस्ड ऑन दिस पार्ट. और अगर NH2 ग्रुप हमने इनवर्ट लिख दिया तो फिर वो होगा L. तो D और L एमिनो, चलो दोनों मैंने समझा दिया. और बस इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक ही है, फिर आगे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है. ये कंटिन्यू. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो प्रोटीन में मेन पेप्टाइड बॉन्ड होता है. अगेन प्रोटीन में मेन कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज. जैसे डाइसैकेराइड में लिंकेज कौन सा था? तो डाइसैकेराइड में वो जो लिंकेज था उसका नाम था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. कौन सी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और यहां पे कौन सी है? पेप्टाइड लिंकेज. चलो, तो उसके लिए यहां पे पहले हम लिख देते हैं एक एग्जांपल, ध्यान से देखना. सपोज मेरे यहां पे लिख रहा हूं ग्लाइसिन. चलो, ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं. ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर NH2CH2COOH. यहां पे भी NH2CH2COOH. और फिर जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या होगा? तो हमें पता है कि ये वाला OH, जस्ट अ मिनट कलर चेंज कर दो. तो ये वाला OH और ये वाला H ओ राइट करना पड़ेगा. और यहाँ का एक H, वो बनाएंगे H2O. ओके, और बाकी का अटैच कर दो. सो NH2 CH2 CO एंड देन यहाँ से NH और CH2 COOH. ओके, और ये जो CONH मिला हमें, सो दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड. चलो, अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं. जो फर्स्ट वाला था ना, इसको हम पीछे आइल बोलेंगे. सो इट इज ग्लाइसाइल और नेक्स्ट वन इज एज इट इज ग्लाइसिन. स्टूडेंट्स, अब अगर हमने NH2 CH2 COOH, चलो ये तो ग्लाइसिन है, और साथ में मैंने एलेनाइन ले लिया. एलेनाइन याद करो क्या था? सिर्फ CH3 नीचे लिखते थे. तो चलो अब इसी में हम करेक्शन कर देते हैं. और करेक्शन में हम क्या करेंगे? चलो, यहां का OH गया और यहां का एक H गया. ओके, तो यहां पे अब बचा क्या? NH. और यहां पे ये लिंकेज हुआ नया. तो सो दिस इज अवर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अगेन जो फर्स्ट हम बोलते हैं वो है आइल, ग्लाइसाइल, एंड सेकेंड पार्ट एज इट इज, सो इट इज एलेनाइन. तो इसका नाम हुआ ग्लाइसाइल एलेनाइन. अगर पहले एलेनाइन लेते बाद में ग्लाइसिन लेंगे तो क्या नाम होगा? फर्स्ट वन इज एलेनाइन, सेकेंड वन इज ग्लाइसिन. तो अगेन फर्स्ट जो बोलते हैं वो आइल, सेकेंड वन इज एज इट इज, तो नोमेनक्लेचर होगा एलेनाइल ग्लाइसिन. अगेन इट इज एलेनाइल ग्लाइसिन. ओके, तो स्टूडेंट्स, तो ये है पेप्टाइड्स. तो अगर दो एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं तो दोनों के बीच में पेप्टाइड्स बॉन्ड होगा एक. तो इसका नाम है डाइपेप्टाइड और नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स 1. अगर 3 एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं
तो फिर ये होगा ट्राइपेप्टाइड, और नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे? 2। ओके, टेट्रापेप्टाइड अगर मतलब तो 4 एमिनो एसिड कंबाइन होंगे, तो एक n-1 होगा पेप्टाइड बॉन्ड, जितने भी एमिनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, तो वो तो पता चल गया होगा। ओके, तो ये था एमिनो एसिड और उसकी थ्योरी। चलो अब टेक्स्ट बुक में से एक बार रीड कर लेते हैं। सो chemically peptide linkage is an amide formed between the COOH and the NH2 group. The reaction between two molecules of similar or different amino acids proceeds through the combination of the amino group of the one molecule with the carboxyl group of the other. ओके, सो दिस रिजल्ट्स इन द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर। एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, देख लो ये मैंने अभी समझाया, यहाँ का OH जाएगा और ये सिर्फ एक H जाएगा। ओके, और बाकी का कंबाइन हो गया, देख लो CONH। ओके, कौन सा CO देख लो एक बार फिर से, तो ये OH, जस्ट मिनट अगेन। So first of all, this OH and this H will give water. Okay, and this CO and this NH will give the peptide bond, peptide linkage, और नाम है glycyl alanine. Okay, so this results in the elimination of the water to give this peptide bond, and the product of the reaction is known as dipeptide because it is made up of 2 amino acids. For example, when carboxyl group of glycine combines with the amino group of alanine, then we are getting डाइपेप्टाइड, और उस डाइपेप्टाइड का नाम है ग्लाइसाइल एलेनाइन। अगर हमने रिवर्स बोल दिया कि कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एलेनाइन इज कंबाइंड विथ एमिनो ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन, तो उसका नाम होगा एलेनाइल ग्लाइसिन, इन्वर्ट हो जाएगा ना। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल पैरा ऑफ टुडेज लेक्चर, इफ अ थर्ड एमिनो एसिड combines to a dipeptide, the product is known as tripeptide, and the tripeptide contains 3 amino acids linked by 2 peptide bonds. Similarly, when 4, 5 and 6, then tetra, penta and hexapeptide is formed. Or when the number of such amino acids is more than 10, then the products are known as the polypeptides. Okay, so a polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass more than 10,000, तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड को हम बोलेंगे प्रोटीन। मतलब प्रोटीन ऐसे ही नहीं बन जाता, तो इसमें एक कंडीशन कौन सी है कि molecular mass must be higher than 10,000. So however, the distinction between polypeptide and protein is not very sharp. So polypeptide with the fewer amino acid are likely be called the proteins if they ordinarily have the well-defined conformation of the proteins such as insulin, which contains only 51 amino acids. Okay students, तो चलो ये हुई टेक्स्ट बुक की थ्योरी, एक बार ठीक तरह से लर्न करो। मिनिमम आपको आई थिंक 3 टाइम्स ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तब आपको आएगा। ओके, तो थ्योरी लर्न कर दो एंड गुड बाय फॉर टुडे। ओके, तो टुडेज लेक्चर इज ओवर नाउ।